হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম টু মেজেষ্টিক একাডেমি। আপোনালোকৰ চবকে মেজেষ্টিক একাডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে একচুৱেলি আপোনালোকৰ যোনটো কালি এক্সাম হ'ব 29th ADRE 2। চ' সেইটো কাৰণে আমি চব এজ এ ফেকাল্টি আপোনালোকক বেষ্ট অফ লাক ক'বলৈ আহিছিলোঁ। চ' আমাৰ চবৰ ফালৰ পৰা মানে বেষ্ট অফ লাক থাকিলে। তাৰ মাজতেও মানে মই আপোনাক কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিম। মানে এট দ্য এণ্ড মুমেণ্ট ইটছ নট ৰাইট টু চে, বাট কিন্তু মই আপোনালোকক অকণমান কিবা এটা ইংলিছৰ ছাবজেক্টলৈ অকণমান কিবা ক'ব বিচাৰিম। মানে যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে চালে যে কি 15th যোনটো এক্সাম হৈছিলে তাত মানে যোনটো ইংলিছৰ লেভেল আছিলে আৰু আমি যিমান মক্স দিছিলোঁ, যেনেকৈ আমি যোনবোৰ আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা মানে যেনেকৈ বেলেগ ইনষ্টিটিউটৰ হওক, যেনেকৈ আমি যিমানেই মক টেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেইটো মানে লেভেলটো অকণমান বেছি হাই আছিলে। আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা মানে ৰিভিউ পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যোনটো আমি একচুৱেল এক্সাম হ'ল তাৰ মানে লেভেলটো অকণমান তাতকৈ তলত আছিলে। চ' এইটো আশা নকৰিব যে কি এবাৰো সেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সাম হ'ব, চ' সেইটো কাৰণে অকণমান বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব। কিন্তু মই এইটো ক'ম যে কি ইংলিছৰ যেনেকৈ দুটা ছেকশ্যন কৰি দিছে আপোনালোকক, ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন আৰু এটা আছিল জেনেৰেল ইংলিছ। চ' জেনেৰেল ইংলিছৰ মে বি লেভেলটো সেনেকুৱা থাকিব পাৰে আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ কুৱেশ্যনবোৰ সেনেকুৱাই হয়। মানে যদি আপোনালোকে চাই বহুত মানে বেছিক কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকক সুধিব। কিন্তু ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন য'ত মানে এক্সট্ৰা ইয়াত মাৰ্কছ আছে, যেনেকৈ ইচ কুৱেশ্যন কেৰিজ 2 মাৰ্কছ। চ' আই হোপ যে আৰু আশা কৰিছোঁ যে কি আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে। কেলৈ কি ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যনত যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ নকৰে আৰু আপোনাৰ যেনেকৈ গ্ৰামাৰ ভাল হয় বা বাকী ছেকশ্যন অফ ইংলিছ ভাল হয়, কিন্তু আপুনি ভালকৈ পঢ়ি কম্প্ৰিহেণ্ড কৰিব নোৱাৰে, তাত মানে আপোনাৰ দিগদাৰ হৈ যাব। প্লাছ এট দ্য ছেইম টাইম যেনেকৈ আপুনি ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন কৰে, যেনেকৈ আমি ক্লাছত শিকিছোঁ, যেনেকৈ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যন কেনেকৈ আমি ডিফাৰেণ্টলি হেণ্ডেল কৰোঁ। চ' আপোনালোকে সেনেকৈ ভালকৈ কৰিব আৰু মানে টাইমটো ভালকৈ মেনেজ কৰিব। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছে টাইমটো ইজিলি মেনেজ হৈ যাব। কিন্তু যোনে ভাবিছে যে কি ৰিডিং এণ্ড কম্প্ৰিহেনশ্যনে হয়, এক্সামত যায় ডিৰেক্টলি বহিম আৰু দিম, তাহাঁতৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হ'ব পাৰিব। কিন্তু আপোনালোকে যোনে প্ৰেক্টিচ কৰিছে আই হোপ তাহাঁতৰ কাৰণে ভাল হওক। আৰু বাকীটো মানে ইংলিছত আৰু একো নাই আৰু নকওঁ মই লাষ্ট মুমেণ্টত। চ' অল দ্য বেষ্ট এভৰি ওৱান আৰু আপোনালোকে ভালকৈ এক্সামটো দিব। চ' আৰু এতিয়া ৰোহিত ছাৰে আপোনাক কিবা ক'ব। চ' প্লিজ মই ৰোহিত ছাৰক মাতি দিছোঁ। थैंक यू मैम। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कल आप लोग का डिग्री वाला एग्जाम है 29 को। ऑलरेडी आपका 10+2 का एग्जाम हो चुका है। जैसे हमने क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए थे क्वांट्स में, वैसे नहीं आए थे, बहुत इजी लेवल के आए थे। जस्ट आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना था, ठीक है। हर टॉपिक्स का बेसिक्स क्लियर करके जाइए। बट इस बार जो कल आपका एग्जाम होने वाला है ये डेफिनेटली लास्ट एग्जाम से थोड़ा हायर लेवल का आएगा, क्योंकि ये डिग्री लेवल का है, 10+2 वाला नहीं है। तो आप लोगों ने घर पे जितने भी प्रैक्टिस किए हैं वो सब सही होगा, आई बिलीव। और अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो अभी आप कुछ नया चीज़ के तरफ मत जाइए। आप नॉर्मली प्रैक्टिस करिए, रिवाइज वगैरह कर लीजिए और जितना हो सके अपना बेस्ट देने का ट्राई करिए। और नेगेटिव रॉन्ग मत करना। आप एग्जाम में आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, चाहे आप 100 ही अटेम्प्ट क्यों ना करो, आप सारे के सारे सही होने चाहिए। अगर आप नेगेटिव करोगे तो फिर आपका स्कोर और बिलो हो जाएगा, जिससे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। अभी मैं प्रशांत सर को बुलाना चाहूँगा, वो भी आपको थोड़ा गाइड कर देंगे। ओके, तो सब लोग अच्छे हैं। होपफुली सबका तैयारी हो गया है। अब लास्ट मोमेंट पे हम लोग आ गए हैं एग्जाम का। आज आपका 29th है और कल आपका आज आपका 29th को आपका एग्जाम है। कल आपका 29 सितंबर में एडीआरई ग्रेड 3 का 4100 के अप्रोक्स में सीट है। चलिए, तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आपने जीएस का तैयारी कर लिया होगा, इंग्लिश आपने पढ़ा होगा क्योंकि इंग्लिश का वेटेज आपका ज्यादा है, मैथ्स आपने रिवीजन कर लिया होगा, इंपॉर्टेंट नोट्स आपने देखे होंगे, रीजनिंग का आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। तो सबसे पहली बात मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखो, जो 15th को एग्जाम हुआ, दो छोटे छोटे से कुछ दो चार ऐसी बातें थी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए था। कुछ लोगों का कहीं ना कहीं वहां पर भी मार्क्स में लॉस हुआ। सबसे पहली बात ये थी कि आपका टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा पार्ट था जिसपे बहुत लोगों ने सही से ध्यान नहीं दिया। मैंने क्रैश कोर्स के रिवीजन क्लासेस में भी ये बताया है टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जीएस ले रहे हो, पहले टच कर रहे हो,
उसके लिए एक पर्टिकुलर एक सेगमेंटेशन करिए आप अपना टाइम का, अपने माइंड में कर लीजिए, प्लान बना के जाइए, इतना टाइम मैं जीएस को दूंगा, इतने टाइम में इंग्लिश करना है, इतने में मैथ या रीजनिंग करना है। और साथ ही में जब जब आप करते जाते हो ना, जैसे ही आप मान लो जीएस का आपने पूरा आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया, तो बबलिंग करना मत भूलिए। पहले आप एक अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करो, उसको बबल कर लो। बाद में क्या होता है, रस हो जाता है, आप जल्दबाजी में करते हो, कभी आपका 41 क्वेश्चन का कलर करना है सी, आप 42 में करके आ जाते हो। लास्ट टाइम आपके साथ ये सब प्रॉब्लम आया जो कि मैंने सुना। तो ये सारी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा काम माइंड के साथ आपको वहां पे एग्जाम अप्रोच करना होगा। स्ट्रेटेजी हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम को ऊपर नीचे करके मैनेज कर लीजिए। जीएस में जो है टाइम आप पर क्वेश्चन में 15 सेकेंड जैसा 10 सेकेंड जैसा अलॉट करिए। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस में आपको टाइम बहुत कम लगेंगे, जो आपका 10 मार्क्स का अलग से आ रहा है, लेकिन जो बाकी आपका 50 मार्क्स का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, याद रखिए कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक कुछ स्ट्रेटेजी है, उसके साथ आप जाइए, जो कि बताया भी गया है क्लासेस में। अब आती है बात देखो मैथ्स की, तो लास्ट टाइम आपका 10+2 में लेवल क्वेश्चन का बहुत नीचे रहा है, पढ़ाई आपको सब कुछ हुआ है और मोर और लेस आपको अच्छे खासे लेवल में आपको पढ़ाया गया है। अब यहाँ पे बात क्या है, ध्यान देना कि जो आपका सीएचएसएल लेवल या एसएससी एमटीएस का लेवल है, उससे भी काफी नीचे क्वेश्चंस पूछा गया था। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आ जाए, हो सकता है 30 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थोड़ा बहुत एडवांस से आ जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। और एक तरफ ये भी हो सकता है कि जैसा 10+2 में आया वैसा सेम रिपीट हो जाए। तो दोनों के लिए आपका माइंडसेट आपका सही होना चाहिए। याद रखना पेपर इजी रहेगा, सबके लिए रहेगा, आपको अटेम्प्ट ज्यादा करना है। अगर पेपर डिफिकल्ट आपको फील हो रहा है तो वो भी सबके लिए होगा। एक्यूरेसी आपको वहां पे मेंटेन करना है। तो स्पीड और एक्यूरेसी टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको करके आना है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे पूरे टीम के तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेष है। आप सब अच्छा करके आओगे, हमें पूरा उम्मीद है। आप लोग को इतना हमने पढ़ाया है, मेहनत किया है आपके ऊपर, हमें पूरा भरोसा है आप सफल होके आओगे। और आपकी सफलता तो आपकी है ही, लेकिन अगर आप फेलियर से अगर गुजर रहे हो तो वो फिर हमारा है। तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। कहीं ना कहीं हमारे में कमी है तब हम ये मानेंगे, लेकिन आपको पूरा जी जान लगाना है, कल अच्छे से एग्जाम देके आना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से एग्जाम दीजिए और फिर मुझे कल आप बताइए आपका एग्जाम कैसा रहा। थैंक यू। सचिन सर आपको इंफॉर्मेशन कुछ देंगे। थैंक्स प्रशांत सर। जैसा कि आप लोग को पता है कि कल आप लोग का एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले अभी क्या करें, तो आपको पहला ये चीज ध्यान रखना है कि कल एडीआरई का एग्जाम जो होने जा रहा है, तो आप अपने आप को सिंपल रखें और कल जो है सिंपल थिंग पहन के जाए, टी शर्ट लोअर पहन के जाएं, जीन्स वगैरह ना पहने और शूज वगैरह को वेयर ना करे और साथ ही साथ वॉच वगैरह को कैरी ना करे। कोशिश करें जितना सिंपल हो सके उतना ही जाएं, एग्जाम देने जा रहा है, फैशन शो नहीं चल रहा है वहां पे। ठीक, तो पहली बात ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अभी हम लोग लास्ट टाइम पे क्या करें, तो लास्ट टाइम पे क्या किया जा सकता है, मैजेस्टिक एकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था, आप उसका वीडियो सॉल्यूशन या आंसर की को देख सकते हैं। लास्ट टाइम पे यही किया जा सकता है। और प्लस जो हमारा करंट अफेयर का सेशन था, आप उसको थोड़ा बहुत वॉच कर सकते हैं। होप हमने जो एडीआरई का जो मॉक टेस्ट सेट किया था, वो इस बात को ध्यान में रख कर किया था कि अभी जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर कैसे पूछे गए थे। तो ऑलमोस्ट हर सेक्शन उसमें कवर अप था, तो आप उसका एक आंसर की देख लीजिएगा। और जैसा कि प्रशांत सर ने मेंशन किया कि आप एग्जाम हॉल में क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो उसी के साथ बबल करें। ठीक, उसका जो है आंसर को फिल करते चले। और मे भी हो सकता है कि आपके पेपर में जो है वन पेपर में जो है 3 to 4 क्वेश्चन रहेगा, तो आप क्या करो, उसको रीड आउट करो, पढ़ो, आंसर दो और तुरंत बबल कर लो, उसको रखो मत, नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता है और उसी में जो सिली मिस्टेक हो जाता है। सिली मिस्टेक का यहाँ पे कोई जो है आपको नंबर नहीं, आपका नेगेटिव मार्क चला जाएगा। तो सिली मिस्टेक मतलब आप एग्जाम से बाहर चले जाएंगे, तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। दूसरी बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने आप को सिंपल रखना है और पहला सेशन क्या अटेम्प्ट करना है, तो जीएस पहले अटेम्प्ट कर लेना है और दूसरे पे आपको लाना है इंग्लिश और थर्ड पे हम रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे और फोर्थ पे आप जो है क्वांट्स को कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, टाइम टेकिंग है, उसको छोड़ दो, उस पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। और ध्यान रखना है कि एग्जाम सब दे रहे हैं और अगर कोई क्वेश्चन अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड होगा और अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। इजी वाले पे फोकस करना है, हार्ड वाले पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, उसको लास्ट टाइम पे अटेम्प्ट करना है। और पहला कोशिश ये रहेगा कि थ्रू आउट द क्वेश्चन देख लेना है, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई बहुत आसान क्वेश्चन हो जो लास्ट में और आपने उसको छोड़ दिया, तो पेपर कंप्लीट करके आना है।
और कोशिश यही रहे कि आप जितना भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका बबल करते समय ध्यान रखना है कि कैसे उसको बबल करना है। होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, और अगर आप सफल होते हैं तो ये आपकी मेहनत होगी, और अगर आप असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो इसी के साथ हम आज का जो है अपना सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और होप आपको जो है जितना भी सपोर्ट मिला होगा हमारी तरफ से, इन फ्यूचर भी हम आपको सपोर्ट देते रहेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आय अखम।